Hello guys, welcome back for the Eastern platform. Earlier we have completed up to almost 20 question, right? Yeah. In section 1, like in the part 1, in that we have completed up to 28th question. Okay. So today we can start from the 21st question. Okay. आपको मैं स्वागत कर रहा हूँ. मेरा नाम है सृजन बिहार. ईस्टर्न प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको स्वागत है. ठीक है. हम 2016 दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर कर रहे थे. ठीक है. चलो गाइस, हम शुरू कर लेंगे. हम 21st क्वेश्चन से. ठीक है, देख लो भाई. 21st क्वेश्चन. बट 21st क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है इधर? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑब्जर्व्ड इंफ्रारेड आईआर अमॉन्ग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स विल बी. मतलब कि इसमें पूछ रहे कि ऑर्डर क्या होता है. मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है? सेम इलेक्ट्रॉन्स. मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब कि सेम इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, लेकिन मतलब कि डिपेंड होता है. देखो, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनस, इन तीनों का आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएट तो होता है ना इसमें. कि मैंगनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है भाई? देखो, ठीक है, इसमें क्या कह दिया है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनस. ठीक है, मतलब कि मैंगनस के पास डी 1 है, डी 2 है, डी 3, डी 4, डी 5. ठीक है, मतलब कि डी 5, इसमें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है. और क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके भी 4 है. और इसमें कितना है? इसमें भी 4 है. क्योंकि इन वेनेडियम देयर शुड बी अ 3 electrons, right? Yeah, it should be a 3 electrons. But in the complex, they have given the negative charge here. So it means that you should add 1 electron, right? Okay. What about manganese? Manganese, it's a 5 electrons, 5 electrons. But they have given a positive charge. Means like 1 electron is minus. Okay. 1 electron is minus. Okay. Minus 1 electron. So it will be 4 electrons. So what about the chromium? In chromium, they have not given any change, right? See, in chromium, they have not told, they have not given any charge. Means like it is common, it is stable. Like they have not increased or decreased the charge of it. The complex having a no charge. It's a like neutral. Okay, fine. So it is 4 electrons. So these are all having a 4 electrons itself. But in vanadium, normally there should be a 4s2 3d3, but it's having a 4s2 3d4, right? So it has higher electrons, so it has more electronic. What about manganese? It has less electron. Okay, less electrons. Okay, fine. ठीक है, ये नॉर्मली कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बोल रहे हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? सॉरी गाइस, आपके क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? आपके क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि इसका क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है. ठीक है, इसका स्ट्रेचिंग, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का कितना वैल्यू हो सकता है, मतलब ऑर्डर क्या होता है भाई? जनरली देखो, जनरली वेनेडियम CO6 माइनस है, मतलब कि वेनेडियम का CO, 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 ठीक है. अब कार्बोनिल है ना, ये पाई एसिड लिगैंड है, राइट? इट्स अ पाई एसिड लिगैंड. So what does he do? It does a back bonding, right? When, like, normally what does ligand do? Ligands just donate a pair of, donates an electron, right? Just donates a electron to a metal. They just donate electron to a metal. उसके बाद क्या है? After that, vanadium getting a more electrons from all these ligands, from all 6 ligands, vanadium is getting electron. So now vanadium is enriched by what? Vanadium is enriched by more electrons. So what happens? So it's be like somewhat unstable. So carbonyl is a pi acid ligand. It can accept the electrons also. So what does it do? It just donate electrons back.
to this. So they form a pi bond. They form a pi bond. Yes, they form a pi bond between this. So pi back bonding होता है ना, pi back bonding. So pi back bonding. The condition for pi back bonding is that metal should be electron rich. Okay. Condition is that metal should be electron rich. Okay. So vanadium normally vanadium का normally electronic configuration क्या भाई 3s2 sorry 4s2 4s2 3d3 but by one electron it has been giving a configuration of a 3d4. So the vanadium is rich in electron, right? Vanadium is rich in electrons. So what does it do? It just do a pi back bonding. Okay. So if the metal is going a pi back bonding, its stretching frequency decreases. Normally what? If metal is electron rich, then pi bonding takes place. Then pi bonding character increases. Pi bonding character increases. If pi bonding character increases, stretching frequency of a carbonyl decreases. What happens? It get decreased. Okay. So it get decreased. It means that if the metal is having a higher electronic space, a higher electron, like if it has a more electrons, if it is electron rich, then its a stretching frequency decreases. So अभी हमारा क्वेश्चन पे क्या क्या पूछ रहे थे? वेनेडियम CO6 माइनस और क्रोमियम CO6 sorry chromium CO6 it's a neutral and manganese it's plus charge, so it is deficient with electron deficient, it is electron deficient and it is neutral. What about this is electron rich. So according to this point, if a metal is electron rich, then pi back bonding character increases. Okay, pi back bonding character increases. This condition is only in presence of a pi acid ligand. Only in the presence of a pi acid ligand. Okay, don't get confused. Only if in presence of a pi acid ligand, if a metal is electron rich, then pi back bonding character increases and stretching frequency decreases. What is this? This is stretching frequency of a carbonyl. Okay, this stretching frequency of a carbonyl it get decreases. So in a vanadium there is less stretching frequency, right? Decreases. In this this electron deficient, right? This electron rich, right? So there is a lesser and it has a more stretching frequency. Okay, it means that the order goes in this way. Stretching frequency order is this. Manganese is having a more stretching frequency, then chromium, then vanadium. Due to why? The main reason is electron rich. Okay, electron richness is a main reason for this. चले देखो भाई हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन पे है? मैंगनीज क्रोमियम वेनेडियम. हाँ, ऑप्शन ए है. समझ रहे हो आप? बस इजी है. आपको इसमें देखो मैं इतना कहानी वगैरह कुछ बोल दिया, आपको कंफ्यूज भी हो गया होगा, लेकिन द थिंग इज दैट यू हैव टू सी वेदर हियर द इलेक्ट्रॉन richness and electron deficient. So manganese electron deficient, as you know earlier that if electron deficient metal is present, then carbonyl like back bonding is difficult, right? Because for back bonding metal should give a electrons to a carbonyl or pi acid ligand. इफ मेटल के पास भी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कार्बोनिल को कैसे दे सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल. सो वेनेडियम कैन डू दैट बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच. ओके फाइन. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? stretching frequency decreases if metal do pi back bonding. ओके फाइन. चलो हो गया, आपको समझ आ गया 21st क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट हम चलेंगे 22nd क्वेश्चन. इन मीथेन
22nd क्वेश्चन देखो भाई, इन मीथेन which of the following symmetry operation will results in a C2 symmetry operation? देखो अभी ये मीथेन का बात नहीं है, बस इट्स ओनली अबाउट द C2 symmetry. ओके, लाइक जनरली व्हाट इज C2? मैं आपको मीथेन का ही एग्जांपल ही लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मीथेन का एग्जांपल ही देख लेंगे, ठीक है। देखो मीथेन है, ठीक है। देखो भाई, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, this is in the plane, is in the plane, okay, and this is above the plane, this is below the plane, okay fine। अभी इसका C2 क्या, तो कैसे हो जाएगा? C2 मतलब इसको लेबलिंग करो, 1 2 3 4, ओके। Just do C2. What is C2 axis? Rotation by 180 degree, right? Means like if you rotate by 180 degree, what happens? The hydrogens in the plane won't change. Okay, the hydrogens in the plane won't change, but only the this part above the plane, below the plane will be changed, because like in above the plane, see, this is above the plane hydrogen and this is the below the plane hydrogen. So when you do 180 degree rotation, that is C2 axis rotation, this goes up and this comes down. Like below will be above, above will be below. So it means that here the H2 will get into opposite direction. H2 will be here and this will be H1. Okay. H3. Okay. This is C2. But what about S4? S4 देखो भाई, एक बार S4 किया ना, आपको प्लेन पे आ जाता है, मतलब सब कुछ ऐसे H1 H2, मतलब आपको दिखते ही नहीं है क्या हो रहा है इधर, ठीक है। आप एक्चुअली इसको हम नॉर्मली जनरली हम क्या बोलते हैं ना, एक C2 इज इक्वल टू हम 2S4 बोलते हैं, ठीक है। जनरली 1C2 इज इक्वल टू 2S4, ओके। लेकिन मीथेन के आपको मतलब 3D में समझ नहीं आएगा, देखो 2 बार किया होगा ना, सेम ही आता है, ठीक है। 2 बार S4 किया हो तो आपको नॉर्मल लाइक आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन, राइट, ओके, आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन वाला एक है। आपको नॉर्मली इन द प्लेन रोटेशन में आपको समझ आता है। इन द प्लेन रोटेशन में देखो, मैं पीटीसीएल को ले लेता हूं, ठीक है, सीएल है, सीएल है, सीएल है, सीएल है, ठीक है। अब इसको मैं लेबलिंग कर लेता हूं 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं C2 करता हूं, C2 मतलब कि C2 ऐसे हो जाता है, कैसे? दिस इन द प्लेन रोटेशन, दिस इन द प्लेन रोटेशन, ओके, याद रखना, इन द प्लेन, दिस नॉट आउट ऑफ प्लेन, मतलब आउट ऑफ द प्लेन मतलब कि अबो बिलो हो जाता है, बिलो अबो हो जाता है, लेकिन इन द प्लेन मतलब कि प्लेन, प्लेन के अंदर ही रोटेशन होता है, ऐसे रोटेशन। लाइक आप कार्डबोर्ड ले लो, एक पॉइंट कर दो, उसको रोटेट करो, कार्डबोर्ड को, इन द प्लेन ही वो रोटेट हो जाता है। लेकिन आपको कार्डबोर्ड को ऐसे ट्विस्ट कर, लाइक ऐसे ट्विस्ट कर दो, ऐसे ऐसे, क्या हो जाएगा, वो आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन होता है, तो राउंड करेगा ना, ये इन द प्लेन रोटेशन होता है। तो इसको इन द प्लेन रोटेशन में ऐसे ही टर्न करना है, बस 2 बार टर्न करना है, C2 एक्सिस से 180 डिग्री टर्न करना है। पहले इसको 90, नेक्स्ट 90 करो, ठीक है। देखो कैसे आ जाएगा, ऐसे आता है, 1 इधर आता है, 4 इधर आता है, और 3 इधर आता है, और 2 इधर आता है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली अपोजिट, ठीक है। देखो ऐसे कंप्लीट अपोजिट होता है, दिस इज लाइक इट इज C2। आप इसको S4 करते हैं ना, S2 पर S4 किया ना, ऐसे ही आ जाता है ये भी। S4 देखो एक बार, एक S4 देखो, S4 मतलब कि बस 90 करना है, बस 90 डिग्री रोटेट करना है कि एक S4 पे 1 इधर आ जाता है, 2 इधर आ जाता है, 4 इधर आता है, 3 इधर आ जाता है, ठीक है। अब इसको दूसरा S4 करो, ऐसे आता है, ठीक है। देखो 1 इधर आ जाता है, और 2 इधर आता है, 3 इधर, 4 इधर,
ठीक है, लाइक दिस इसको देखो, इन द प्लेन में आपको समझ आता है क्या हो रहा है इधर, लेकिन आउट ऑफ द प्लेन में थोड़ा 3D यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली यही होता है बात, 1C2 इज इक्वल टू 2S4 बोलते हैं, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन में यही है, इन मीथेन विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशन विल रिजल्ट इन अ C2 सिमेट्री ऑपरेशन, 2S4 operations give a 2S4 operation give a 1C2 symmetry, ओके। चलो भाई, और एक चीज है, क्या था, 1C2 इज इक्वल टू 2S4 और आइडेंटिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स S4 होता है, मतलब कि इसके लिए समझ रहे हो, मतलब दिस ओनली फॉर C2 के बात कर रहा हूं मैं। आप आइडेंटिटी चाहिए तो दो बार C2 किया तो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो 2 बार C2 मतलब क्या होता है, 2 बार 2S4, तो कितना हो गया 4S4, तो सेम ही है ना, रिलेटेड है। हाँ बस। और देखो भाई, 23rd क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, द पॉइजनिंग इन द मिनीमाटा बे इन जापान वाज ड्यू टू, एक्चुअली a जनरल क्वेश्चन है रिलेटेड टू केमिस्ट्री, like it was a famous question during that time, okay। So what was the answer for this, देखो भाई, द पॉइजनिंग ऑफ अ मिनीमाटा इन अ बे ऑफ बंगाल was due to a methyl mercury, ठीक है। वो पॉइजनिंग फ्रॉम ईटिंग अ फिश, मतलब कि फिश फिश खाने से थोड़ा पॉइजन आ जाता है, वो ड्यू टू अ methyl mercury है, ठीक है। ये ऑप्शन बी है, methyl mercury compounds minamata bay in Japan, this was due to a methyl mercury compounds। चले भाई, एक्चुअली ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा जनरल नॉलेज से करना चाहिए, मतलब आप लॉजिकली आप आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो 24 देखो भाई, रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉलिड 6 C60 disappears when formed compounds were, देखो रेजिस्टेंस कब आता है पता है आपको, नॉर्मली रेजिस्टेंस आ जाता है कब आपको डोप करना होता है थोड़ा, मतलब कि आप कुछ ले रहे हैं, मतलब कि सॉलिड 6 कार्बन 60, कोई मतलब कोई मटेरियल ले रहा है, उसको डोप कर रहा है, मतलब कि डोपिंग के बाद उस मटेरियल को थोड़ा कैरेक्टर आ जाता है। अब डोप करता है ना, वो डोप वाला कंपाउंड होता है ना कि वो उसको कुछ कैरेक्टर देता है। मैं एक पेन लिया, इसको पेन लिया, ठीक है, मैं एसिड के अंदर डिप कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, कुछ तो चेंजेस हो जाएगा इसके पेन पेन पे, थोड़ा चेंजेस हो जाता है, ठीक है, एसिड के अंदर डिप होने के बाद ऐसे ही है। अभी सॉलिड 6 सॉरी C60 इसको डिप करना होता है, डिप करने के बाद रेजिस्टेंट डिसअपियर होता है, ठीक है, मतलब कि कार्बन 660 को अब एक आल्कली मेटल्स के अंदर डिप करता है, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस डिसअपियर होता है, तो अभी आल्कली मेटल्स को हम आंसर चूज करना होता है, कौन सा है, पोटेशियम रुबिडियम सेसियम, ये आल्कली मेटल्स है, ठीक है। वो सुपर लाइक देखो, रेजिस्टिविटी डिसअपियर होता है मतलब क्या है, इट्स सुपर कंडक्टर, राइट। हाँ बस, ऑप्शन ये है भाई, सिंपल का चीज, दिस वेरी सिंपल, सी like solid carbon 60 when you doped into inside the alkali metals, when you dope inside the alkali metals, there will be no resistance, there will be no resistance in the solid carbon 60 material, because the alkali metal will all remove the resistivity, like resistivity character, so it will be completely superconductor, okay। चलो भाई, आंसर है पोटेशियम रुबिडियम सेसियम, और मतलब कोई भी मतलब देखो, पोटेशियम रुबिडियम सेसियम दिया है और इधर सल्फर सिलियम टेलुरियम दिया है, लेकिन आपको पोटेशियम रुबिडियम सेसियम ही देना जरूरी नहीं है, लेकिन तो आल्कली मेटल्स इसके अलावा भी दे सकता है, ठीक है, वो भी करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। 24 क्वेश्चन तो हो गया, अब चले हम कर लेंगे 25th क्वेश्चन, देखो, ग्राउंड स्टेट फॉर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ग्राउंड स्टेट फॉर D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब आप टर्म टर्म फाइंड करना होता है, ग्राउंड स्टेट क्या है इसका,
ठीक है भाई, देखो टर्म सिंबल से आपको इसको फाइंड करना होता है, टर्म सिंबल। देखो भाई, कौन सा क्वेश्चन दिया था हमको? D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D4। चलो कोई नहीं, D4। ठीक है, D4 मतलब कि D4 मतलब क्या है? लाइक नॉर्मली क्रोमियम हो गया ना, D4 स्कैंडियम वेनेडियम वेनेडियम क्रोमियम। हाँ, ये क्रोमियम का है। इसका नॉर्मली ए लिख दो। कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4। और इसका मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर तो -2, सॉरी +2 0 होता है ना, +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब इसको नॉर्मली पहला क्या, टर्म सिंबल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है? 2s+1 L J, ठीक है। ए हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। 2s+1 क्या आता है? 2s+1 होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है भाई। अब देखो पहले 2s+1 फाइंड कर लेंगे, 2s+1 फाइंड कर लेंगे। एस क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू स्पिन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलो, 2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4 है ना, 4 इंटू स्पिन, सो टोटली स्पिन क्या होता है? स्पिन नॉर्मली आप ही होता है, प्लस ऑफ माइनस ऑफ, हम आप इंक्लूड नहीं करते, मतलब वो क्या सिंबल को हम नेग्लेक्ट करता है, ओनली आप यूज करता है, तो 2 हो जाएगा इसका, और 2+1, सो हमारा 2s+1 वैल्यू बनता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू बनता है 5, ठीक है भाई। तो 5 हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू, एक इसका काम हो गया। और दूसरा क्या काम बचा हुआ है? यल, लीनियर मैग्नेटिक मोमेंटम का वैल्यू क्या है इसका? तो लाइक ऐसा है तो 0 आना चाहिए, P1 है, D = 2 है, सो हमारा इसमें यम क्या आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 × 2, 2 कहां से है? ए से है, ठीक है, प्लस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1, ठीक है। ए कैंसिल हो जाएगा और ये तो 0 है, तो फाइनली एल का वैल्यू आता है कितना है? एल आता है 2। तो 2 आया तो क्या होता है? 2 आया मतलब डी है ना भाई, सॉरी कैपिटल लेटर्स है ना, पी, ठीक है, 2 आया मतलब डी है, सो L = D। सो फाइनली क्या है? आप हमारा 5 आया था, सो 5D है। हमारा आंसर देख लेंगे है ही है क्या नहीं, क्योंकि वहां इधर है ना, एक्चुअली हम 2s+1 एल जे है ना, इसमें 2s+1 एल को हम बोलता है टर्म, बस बस टर्म बोलता है, ठीक है। और 2s+1 एल जे इसको हम बोलते हैं टर्म सिंबल। लेकिन हम हमारा आंसर पे ओनली टर्म के बारे में बोला है, टर्म सिंबल्स के बारे में बोला नहीं है, ठीक है। जे के बारे में बोला नहीं, ठीक है। मतलब जे भी फाइंड कर सकता है, लेकिन जे के लिए आपको मतलब थोड़ा फॉर्मूला है, वो L+S2 L-S होता है, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है वो, ठीक है। इसमें आप मतलब कि वो हाफली फील्ड के लिए L-S लेना पड़ता है, फुल्ली फील्ड के लिए L+S लेना पड़ता है, ठीक है। बस इसमें हम जे वैल्यू फाइंड कर सकते, लेकिन अब हमारा इसमें जे वैल्यू पूछा नहीं, लेकिन हमने मतलब इतना सारा प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन तो आया है, उसमें हम जे वैल्यू फाइंड किया है, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलो, हमारा आंसर क्या है? 5D है, ठीक है। अब इधर होगा ही है, ठीक है। 5F है, ये गलत है, और 5D है, हाँ ये ठीक है। देखो डी दोनों साइड में डी दिया है, ठीक है, लेकिन हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू कितना है? 5 है, सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी है। चले भाई, हो गया। चलो 26, चलो, लाइक इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब कि लाइक नॉर्मली हम अब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो क्या था,
देख लो भाई 26 क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज अ मोर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट, एक मिनट, which of the following elements has a more stable oxygen state in a +3 oxygen state as compared to an oxygen state of a +1? देखो भाई, मतलब कि इन चारों में स्टेबल कौन सा है, मतलब कि +3 ऑक्सीजन स्टेट में वो स्टेबल हो जाता है और +1 ऑक्सीजन स्टेट में इट विल नॉट बी स्टेबल. सो व्हाट आर दोस? लाइक इट्स अ गैलियम, थैलियम, अल्यूमिनियम, बोरॉन. सो लाइक दिस आर ऑल 13 ग्रुप फैमिली, राइट? ये 13 ग्रुप का फैमिली है. ये 13 ग्रुप का फैमिली है, लेकिन इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? आप नॉर्मली देखा होगा, अल्यूमिनियम आप नॉर्मली +3 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना भाई? अल्यूमिनियम जनरली देखो, अल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, AlCl3, है ना, लाइक कैटलिस्ट, लाइक लेविस एसिड, मतलब लेविस एसिड ये है ना, वही भाई, मतलब कि प्लस आप कहीं भी देखा नहीं होगा +1 पे रेयरली एग्जिस्ट, अल्यूमिनियम रेयरली एग्जिस्ट इन अ +1, लाइक we can't, like very rarely, okay, that will be +1 oxygen state, but aluminum generally exists in a +3 oxygen state. okay, चलो, आंसर क्या होता है? अल्यूमिनियम ही होता है. ठीक है, मतलब कि ना, केमिस्ट्री जैसे ना लॉजिकली आंसर बताने वाला चीज नहीं है कि थोड़ा याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप मतलब पढ़ते पढ़ते इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट को आप पढ़ते पढ़ते बहुत सारा चीज आ जाता है वहां पे. ठीक है, वहां पे आप नोटिस करना जरूरी होता है कि अल्यूमिनियम एग्जिस्ट होता है क्या, नहीं होता है क्या, मतलब कौन सा फॉर्म पे एग्जिस्ट होता है. मतलब पीरियोडिक टेबल में तो, पीरियोडिक में डी क्या, पूरा 13 ग्रुप में 13 ग्रुप मतलब पी ब्लॉक पढ़ने के टाइम पे आपको नॉर्मली अल्यूमिनियम का पूरा आ जाता है. ठीक है, वहां पे आप नोटिस करना जरूरी होता है जनरली. ठीक है, चलो भाई. और गैलियम टाइप, मतलब ये देखो, डाउन द ग्रुप क्या होता है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, उसका अलग ही कहानी आ जाता है. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, द शील्डिंग इफेक्ट, लाइक शील्डिंग किसका ज्यादा है? एस ऑर्बिटल्स का ज्यादा है, उसके बाद sp d, मतलब ड्यू टू दिस शील्डिंग इफेक्ट है ना, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट है ना, उसका स्टेबिलिटी, मतलब उसका ऑक्सीजन स्टेट का स्टेबिलिटी डिफरेंट होता है डाउन द ग्रुप. लेकिन लाइक अबोव द, लेते ना बोरॉन, अल्यूमिनियम का, इन लोग का तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट तो नहीं है, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट तो, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो नहीं आता है. इसके लिए वो गैलियम थैलियम का थोड़ा चेंज हो जाता है स्टेबिलिटी, लेकिन अल्यूमिनियम का तो ऑलवेज इट विल बी स्टेबल, इट विल बी +3 में ये स्टेबल होता है, +3 में स्टेबल है, और +1 पे इट्स अनस्टेबल. ठीक है, बस. अब चले 27th पे, द स्ट्रक्चर ऑफ अ ICl2-, इट्स अ ICl2-. ठीक है भाई, देखो ICl2- का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ICl2 का स्ट्रक्चर देखो, ICl2-, सेंट्रल एटम कौन सा है? आयोडीन ही है. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 1, 7 है ना, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और इसका ओरल इलेक्ट्रॉन है तो एक हो गया. ठीक है, चलो, मतलब टोटली लाइक इट्स लाइक नोबल गैस स्ट्रक्चर जैसे ना, इसमें दो बॉन्ड बन जाता है, एक का क्लोरीन का है और इधर एक क्लोरीन है, और इधर लोन पैर है, लोन पैर, लोन पैर, लोन पैर. ठीक है, ड्यू टू दिस है ना, लीनियर स्ट्रक्चर पे आ जाता है ना, इसके वजह से ये लीनियर स्ट्रक्चर पे आ जाता है नॉर्मली. ठीक है, अब मतलब ऐसे लोन पेयर्स का इफेक्ट है, लाइक देखो, लोन पेयर्स है ना, दिस आर लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लाइक लोन पेयर है, दे आर लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो दिस जनरली फॉर्म्स अ ज्योमेट्री ऑफ टीवीपी ज्योमेट्री, राइट? टीवीपी ज्योमेट्री, उसमें क्या होता है, ये तीनों लोन पेयर ना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट हो जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे. ठीक है, और एक क्लोरीन है ना, दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम. सो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू Bend's rule, right? According to Bend's rule, क्या होता है? Electronegative atoms should stay on the axial position, right? So what happens? This will be at axial position. और axial में तो दो बॉन्ड पॉसिबिलिटी है,
तो दो बॉन्ड इट्स इन एक्सियल पोजिशन, और लाइक तीन बॉन्ड पॉसिबिलिटी है इक्विटोरियल पोजिशन पे, तो लोन पेयर एग्जिस्ट हो जाता है। तो इक्विटोरियल पोजिशन पे लोन पेयर है, और एक्सियल में इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्लोरीन है, ठीक है। तो ड्यू टू present of a lone pair electrons, they get strictly arranged, linearly arranged. Okay, so the structure is linear structure. ठीक है भाई, लीनियर स्ट्रक्चर है। चलो, आंसर क्या है भाई? लीनियर स्ट्रक्चर। ओके फाइन, लीनियर हो गया। एक्चुअली if they could have asked geometry ना, ज्योमेट्री पूछ लिया होता तो हमारा आंसर क्या होता था? ट्रिगोनल पिरामिडल, टीपी होता था। लेकिन इधर में स्ट्रक्चर दैट इज शेप पूछा है, तो इट्स अ लीनियर। ओके, इट्स अ लीनियर। चलो, अब 28 क्वेश्चन देखो भाई, 28 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शो अ मेसनर इफेक्ट। भाई मेसनर इफेक्ट क्या होता है? जनरली मेसनर इफेक्ट होता है कि कॉम्पाउंड्स है ना, मतलब कि आपको मटेरियल को, मतलब थोड़ा मटेरियल को आपने उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया और दोबारा मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होता है उसका, मतलब उसका नेचर चेंज होता है ना। कि देखो, लाइक नॉर्मली क्या होता है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे आता है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड देता है थोड़ा, ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, लाइक दे गॉट रिपेल्ड, सो पैरामैग्नेटिक आ जाता है। और डायमैग्नेटिक ड्यू टू दैट वो चेंज नहीं होता है, डायमैग्नेटिक आ जाता है। और ऐसे मतलब फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, सब कुछ मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, प्रॉपर्टी होता है। ऐसे भी है कि सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड होता है। तो इधर मेसनर इफेक्ट आता है ना, दिस इज ड्यू टू अ सेमीकंडक्टिंग एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, सेमीकंडक्टिंग एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। जनरली मेसनर इफेक्ट का थोड़ा बताता हूं कि क्या होता है इसमें। The expulsion of a magnetic flux from the interior of a magnetic material. From interior of the material, that is, देखो, the expulsion of a magnetic flux, excuse me, देखो मेसन इफेक्ट क्या पूछता है कि द एक्सपल्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, ए प्रोसेस है ना, एंड दैट दिस प्रोसेस, एक्सक्यूज मी, दैट इज, this process is called as a, this process of becoming a superconductor is called as a is called a Meissner effect. देखो, एक्चुअली एक्चुअली डेफिनेशन है मेसनर इफेक्ट का, मतलब कि इसका मतलब बताता है, मतलब कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसका मतलब है क्या होता है इसका, मतलब जनरल, लाइक बेसिक नॉलेज दे रहा हूं बस, मैं पूरा इंडेप्थ नहीं बोला क्योंकि आपको यूज ही नहीं है, फिर भी थोड़ा मैग्नेटिक मटेरियल्स में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड सॉलिड स्टेट पे मैग्नेटिक मटेरियल्स का अंदर आता है कि द एक्सपल्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ मटेरियल, दिस interior of a material, that is, this process of becoming a superconductor is called as a Meissner effect. चले भाई, चल, ओके, इसका आंसर क्या है? सुपर कंडक्टिंग एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दिस मटेरियल्स आर शोन बाय द मेसनर इफेक्ट्स। ओके, चलो,
29 क्वेश्चन देखो भाई, क्या पूछ रहा है? द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ ट्रांस इफेक्ट्स शोन बाय द सिग्मा डोनर लिगेंड्स। भाई ट्रांस इफेक्ट क्या होता है? ट्रांस इफेक्ट क्या होता है ना, देखो ये प्लैटिनम है, Cl 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 है। अभी इसमें क्या आता है कि अमोनिया, लाइक अभी अमोनिया लिगेंड को हम इसमें इस प्लैटिनम, मतलब कि ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इस Cl को ए ट्रांस है और इस Cl को ए ट्रांस है, कोई फायदा नहीं है क्योंकि सभी में सब्स्टिट्यूशन है, लिगेंड क्या है, Cl ही है। लेकिन अब क्या करेगा, अब अमोनिया को ऐड कर लेंगे, अब इसमें अमोनिया को ऐड कर लेंगे, इसमें ट्रांस लाइक सी, मतलब अमोनिया कर रहा है कि इसमें कोई भी चले जाओ क्लोरीन, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो अमोनिया आ गया इधर, और इधर Cl है, और इधर Cl है, और इधर Cl है, ठीक है। अब देखो अब क्या आता है, अब दोबारा अमोनिया ऐड करो। अभी देखो ऑप्शन ए की ए वाला निकल सकता है ना, और ए वाला निकल, लेकिन अमोनिया के सामने कौन सा है वो डिपेंड होता है कि, लेकिन इसको ए निकल सकता है और इसको ए निकल सकता है। लेकिन एक चीज है कि अमोनिया अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन के से ज्यादा नहीं है, कम है, कि क्लोरीन एज अ मोर ट्रांस इफेक्ट देन अमोनिया, ठीक है। मोर ट्रांस इफेक्ट है फॉर व्हाट, फॉर क्लोरीन, chlorine has a more trans effect than ammonia. So what happens? This ammonia can't remove this chlorine. Okay, this ammonia can't remove this chlorine. Only the possibility is this chlorine can remove this chlorine. है ना, बस। मतलब ट्रांस इफेक्ट मतलब कि ट्रांस लिगैंड में, मतलब इसका ट्रांस में कौन है, मतलब कि अमोनिया का ट्रांस में कौन है, इसको हम ट्रांस लिगैंड बोलता है। इसका इफेक्ट कैसे होता है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर क्या लगता है वो हम बोलना है, ठीक है। अब अमोनिया आ गया, अब इधर अमोनिया, क्योंकि ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा है, इसका मतलब कि अमोनिया इसको नहीं निकल सकता है, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन अमोनिया को निकल सकता है, लेकिन क्लोरीन अमोनिया को निकल सकता है, लेकिन अमोनिया अभी अभी आया है तो वो मतलब देखो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा ना, कि इफ क्लोरीन, I know chlorine is a strong, like it's a good, it shows a good trans effect, but it can't remove ammonia because we just add ammonia to this compound so that it has removed one chlorine and substituted the ammonia. अभी दोबारा आप क्लोरीन से अब अमोनिया निकल गया तो रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, ऐसे रिवर्स हो जाएगा तो ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज नॉट शोन बाय दिस कॉम्पाउंड। अभी इधर क्लोरीन रह गया, इधर क्लोरीन रह गया, अभी इसको नाम बोलते हैं सिस्प्लैटिन, दिस एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है, दिस एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर ड्रग, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो, ठीक है। चलो वही ट्रांस इफेक्ट है, किसका इफेक्ट ज्यादा होता है उसको हम देखना है, लाइक इन सिग्मा डोनर। अभी हमारा क्वेश्चन देख लो भाई, हमारा क्वेश्चन पे यही पूछ रहा है किसका ज्यादा ट्रांस इफेक्ट है, कि इसका ज्यादा है, मतलब ऑर्डर देखना होता है नॉर्मली, इसका ऑर्डर होता है PR3, फॉस्फोरस का है ना, इसका ज्यादा होता है, ठीक है, नॉर्मली PR3 का ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद किसका आता है, उसके बाद नॉर्मली SCN का आता है, ठीक है, और Br नेक्स्ट OH। एक्चुअली ऑर्डर है पूरा, इसको याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली ट्रांस इफेक्ट मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे लाइक सिग्मा डोनर लिगेंड्स का ट्रांस इफेक्ट कैसे चेंज होता रहता है वो हम बोलना होता है, ठीक है। चलो भाई अब देखो 38 क्वेश्चन देखो भाई, 30 क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है, दे हैव गिवन द डेटा ऑफ अ 5 experimental determination of a Fe, 5 experimental determination of a iron Fe in an iron ore by a volumetric method gave the percentage of 67.48, this much of data that it has, like volumetric method पे experimentally they have got almost 4 values, okay 4 values आ चुका है। उसके बाद हम इसमें 5 experimental data में
5 experimental determinations of a FP gave a 4 values of this different. Now you have to find the standard, average and the probable deviation of the means are. इसका स्टैंडर्ड मीन फाइंड करना है, एवरेज मीन, प्रोबेबल डिविएशन मीन, सो काइंड फाइंड करना है. एक्चुअली ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का रिलेटेड है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का रिलेटेड है. ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे. अभी क्या पूछ रहा है, पहले वैल्यूज को लिख लेंगे. क्या था, चल पहले फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है. उसके बाद हम फाइंड करना है एवरेज डिविएशन. उसके बाद हम प्रोबेबल डिविएशन फाइंड करना है. ठीक है, पहले हम फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन का. ठीक है, देखो देखो भाई, स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या भाई, अल्फा. मतलब हम कंसिडर लाइक हम सिग्मा भी बोल सकते हैं, कोई नहीं. ठीक है, हम इसको सिग्मा से डोनेट करता है ना. हाँ देखो, फॉर्मूला क्या है इसका, सिग्मा इज इक्वल टू, देखो एक्चुअली इसमें तीन चार फॉर्मूला से यूज करना होता है नॉर्मली. ठीक है, एक सिग्मा है, इसका इसका फॉर्मूला होता है कि 1/n समेशन ऑफ एक्स ह्यूमैनिटी. ठीक है, अब इसमें ये होता है ना कि म्यू, इसको मीन बोलते हैं. मीन मतलब कि टोटल, मतलब एवरेज बोल सकते हैं कि कितना है हमारे पास तो चार है, लाइक 6.7, 67.48, 67.37, 67.43, 67.40, 48, 37, 37, 40, 43, 48, 37, 40, 48 और कौन सा था मिसिंग, 43, 40 है ना क्या, 43 भी है. ठीक है, चलो 67.37 प्लस 67.40 प्लस 67.43 प्लस 67.48. ठीक है, इसका मीन मतलब टोटल सम ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड बाय 4 करना है. ठीक है, अब इसका वैल्यू आता है, मीन का म्यू का वैल्यू आता है 47.42. ठीक है, 47.42 आता है. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब कि एक्स है ना, एन है ना, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितना था भाई, टोटल नंबर कितना था, 4 है ना. हाँ 4 है. ठीक है, और एक्स होता है कि ईच वैल्यू कंसिडर्ड, ईच वैल्यू फॉर कंसिडरेशन. ठीक है, हम ईच वैल्यू को कंसिडर करना होता है. ठीक है, ईच वैल्यू को कंसिडर करना होता है इसमें. ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइड लाइक पहले इसको फाइंड करो क्या है, एक्स माइनस न्यू, मतलब कि एक्स क्या है, ईच नंबर 67.37 माइनस, देखो इसका पहले वाला दिखाता हूं मैं, पहले वाला की 67.37 माइनस, सॉरी 67 पॉइंट है ना, हाँ 67.42, इसको माइनस करो, उसका आंसर को हम स्क्वायर करना है, उसके बाद डिवाइड बाय, इसको सब ऐसे दूसरा वैल्यू लेना है, उसका इसके साथ माइनस करना है, और सब कुछ लेके हम ऐड करना है स्क्वायर करके, उसके बाद डिवाइड बाय एन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर कंसिडरेशन है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने लिए हम इसको करना होता है. ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर सिग्मा आ जाएगा. एक्चुअली इसका वैल्यू कितना आता है ना, लाइक 0.047, देख लो, स्टैंडर्ड डिवीजन आना चाहिए 0.047. ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन के बाद कौन सा है, स्टैंडर्ड डिवीजन के बाद हम एवरेज देखना है, एवरेज डिविएशन. हम एवरेज डिवीजन देखना है.
एवरेज डिविएशन का फॉर्मूला क्या है भाई? समेशन ऑफ हेक्स माइनस एन, सॉरी म्यू, सॉरी म्यू, सॉरी ये मॉडुलस है ना, सॉरी, एक्स म्यू डिवाइड बाय टोटल एन, ठीक है। अब इसको क्या बोलता है? इसको एवरेज डिविएशन है, सेम यही है, लेकिन इसमें क्या ना, स्क्वायर नहीं करना है और रूट भी देखो, इसमें रूट था और स्क्वायर स्क्वायर था और इसमें मॉडुलस नहीं था, लेकिन इसमें मॉडुलस आया, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है। और इसका वैल्यू आता है नॉर्मली 0.036 है। आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तो नहीं है कैलकुलेशन, नॉर्मली लाइक पॉइंट डेसिमल लेवल का कैलकुलेशन है बस, फ्रैक्शन का भी नहीं है, थोड़ा डेसिमल का कैलकुलेशन है। उसको आप टोटल करेगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका भी थोड़ा एक दिखाता हूं मैं आपको, समेशन करना है, मतलब सभी का एक्स क्या होता है भाई, थोड़ा एक वैल्यू 67.40 ले लो, उसके बाद माइनस करो टोटल के साथ, 67.42 था, आंसर आ जाएगा, डिवाइड बाई एन करो, ठीक है। एन क्या था? 4 था, 4 कर दो, और हमारा सॉरी 4 कब है? टोटल समेशन होने के बाद सभी का, और प्लस करो 67.43 करो, माइनस 67.42 प्लस, ऐसे चारों को ऐड करो, उसके बाद डिवाइड बाय 4 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज डिविएशन, दैट इज 0.037 आता है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? और तीसरा है वो प्रोबेबल डिविएशन, प्रोबेबल डिविएशन, इसका आंसर देख लो भाई, सॉरी इसका नॉर्मल, इसका एक वैल्यू है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, ये फॉर्मूला है। अब इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला पता है आपको? स्टैंडर्ड डिविएशन तो आप फाइंड किया है ना स्टार्टिंग पे, 4 5, इसका वैल्यू कितना आया था इसमें? 0.047, ठीक है, इंटू 0.047, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर आ जाएगा 0.031, ठीक है। अब ये प्रोबेबल डिविएशन का है, ठीक है भाई। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल है, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और उसके बाद इसका आंसर आ जाता है, देखो इसमें ना डेसिमल लेवल का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ऐसे कोई मतलब मैं किया होगा इधर तो पूरा 1 घंटा चले जाएगा, ठीक है। मैं इधर लिखना होता है, कैलकुलेट करना होता है, लेकिन आप लोग जल्दी लिख के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें। और उसके बाद एवरेज डिविएशन है 0.036 आंसर आता है। उसके बाद प्रोबेबल डिविएशन है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन को मल्टीप्लाई करो, आंसर इतना आ जाता है, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन का आंसर देख लो, 0.047 था ना, और 0.036 था, और 0.031 है, हाँ, ऑप्शन सी है हमारा आंसर। चले भाई 38 क्वेश्चन हो गया। अब चले 31st क्वेश्चन के ऊपर। 31st क्वेश्चन देखो भाई, द आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पाउंड इज, देखो ये आसान आसान क्वेश्चन थी, हम 11 से पढ़ के आ रहे हैं ना, 11 स्टैंडर्ड से, आप लोग 11 स्टैंडर्ड से डीयू का तैयारी करके आ रहा है ना, you are just preparing from 11th standard for a Delhi University paper itself. So you have got the an opportunity, right? मैं भी रिस्पॉन्ड है ना इधर, हाँ, ठीक है। देख लो भाई, इसमें ना पहला रूल क्या है, लॉन्ग चेन को ढूंढना है। लॉन्ग चेन मतलब कि बड़ा वाला स्ट्रक्चर का चेन कहां पे है वो पहले आपको देखना है। देख लेंगे हम कहां पे है, लेबलिंग करो, 1 2 3 4 5, ए चेन है, 5 में 5 कार्बन का है। और उसके बाद एक कार्बन का इधर का, इसको चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5, इसका भी 5 है, तो ऐसे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब इसमें 6 आ रहा है ना, 1 2 3 4, इसमें 6 आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए। अब ऐसे देखो भाई, बड़ा वाला मिल जाएगा बीच में, ऐसे, हाँ, और ऐसे भी देख सकते हैं कितना आएगा पहले, 3 4
5 6 7 इसमें मतलब ऐसे चेन पे 7 कार्बन है। और दूसरा कैसा है, इसमें तो 3 4 5 6 7 8, हाँ इसमें 8 आ रहा है। दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम। ओके, देखो पूरा गंदा हो गया इधर, मैं दिखाता हूं पूरा, अभी लेबलिंग कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ आप ऐसे भी लेबलिंग कर सकते थे ना कि इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। लेकिन देखो एक चीज है कि ये फोर्थ कार्बन पे ना सब्स्टिट्यूशन तो देखो, अब हम इस साइड पे जा रहा है, फोर्थ पे सब्स्टिट्यूशन आया है। अब इस साइड पे आता है ना, थर्ड पे ही सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। लेकिन थर्ड पे ना कितना सब्स्टिट्यूशन आया है, एक ही सब्स्टिट्यूशन है, वन सब्स्टिट्यूशन ऑन थर्ड कार्बन। कार्बन 3 में सब्स्टिट्यूशन है ओनली वन सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इस साइड पे जाता है ना फोर्थ कार्बन पे, आपको नॉर्मली 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन आ चुका है। फोर्थ कार्बन पे आपको टर्शरी आया है, इसके लिए हम इस रूट पे देखना पड़ता है। ठीक है, चलो भाई इसमें देखो अभी 8 मेंबर, 8 मेंबर चेन है, इसका मतलब कि ऑक्टेन होना चाहिए ना, ऑक्टेन होना चाहिए। अभी देखो भाई ऑक्टेन कहा है, वो हमारा आंसर होता है। इसमें चारों में, तीनों में ऑक्टेन है। अब 2 मिथाइल 2 डाई प्रोपाइल पेंटेन, ये गलत है, पेंटेन तो है ही नहीं, गलत है। और ऑक्टेन पे देख लो भाई, फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कितना सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी फोर्थ, दो सब, सॉरी सेकंड है, टू सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी टू सब्स्टिट्यूशन है। एक्चुअली लॉन्ग चेन भी कंसिडर कर दिया मैंने। 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है फोर्थ चेन पे। सो 4 4 डाई मिथाइल, फिफ्थ पोजिशन पे कितना है, इथाइल है ना, फिफ्थ पोजिशन पे इथाइल ग्रुप है इधर, C2H5 इथाइल पोजिशन है ना। हाँ 5 इथाइल ऑक्टेन, हमारा आंसर है ऑप्शन ए। देखो भाई हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ओ 4 4 डाई मिथाइल 5 इथाइल ऑक्टेन। ये क्यों नहीं होता भाई, 4 इथाइल दिया है, लेकिन फोर्थ पोजिशन पे हमको क्या मिलता है, फोर्थ पोजिशन पे हमको मिलता है जनरली क्या है, 2 मिथाइल। लेकिन इसमें फोर्थ पोजिशन पे क्या है, फोर्थ इस साइड पे आता है ना, फोर्थ पोजिशन पे इथाइल ग्रुप है, ये गलत है। हम लेबलिंग कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, इसके लिए हम दो सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम प्रियोरिटी देना है। एक सब्स्टिट्यूशन को प्रियोरिटी नहीं देना है, दो सब्स्टिट्यूशन को हम प्रियोरिटी देना है। ठीक है, वही तो रूल्स है। उसके बाद 5 इथाइल है, ठीक है भाई 5 इथाइल तो ठीक है, 4 डाई मिथाइल है, ठीक है वही ठीक है। लेकिन अल्फाबेटिक ऑर्डर भी आता है, क्या अल्फाबेटिक ऑर्डर, डाई मतलब कि डी फर्स्ट आता है, उसके बाद ई आता है, तो पहला वाला डी डाई मिथाइल देना है, उसके बाद 5 इथाइल देना है। ठीक है भाई, हम कितने रूल्स देखा है, एक तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेकंड रूल कौन सा था, लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड रूल था हम चूज करना है आईआर प्रियोरिटी सब्स्टिट्यूटेड, आईआर सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट प्रियोरिटी हम किए थे। 2 डाइमिथाइल को हम पहले प्रियोरिटी दिए थे। ठीक है, और तीसरा कौन सा था, और थर्ड वन इज दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, हम डाई डी फर्स्ट आता है, उसके बाद हम ईथाइल लिखता ना, ई है ना भाई, डी के बाद ई आता है ना, ABCD, डी के बाद ई आता है, सो डाइमिथाइल है, उसके बाद इथाइल है फिफ्थ पोजिशन पे, है तो फोर्थ पोजिशन, बस हो गया। चलो भाई हो गया, 4 4 डाइमिथाइल 5 इथाइल ऑक्टेन हो गया। ठीक है भाई, चले हमारा 31st का आंसर है ऑप्शन ए है। चलो भाई हम अभी 30 सेकेंड से 30 सेकेंड से हम पार्ट 3 में और अगले सेक्शन पे कंटिन्यू कर लेंगे। आज हम खत्म कर दिया 31st क्वेश्चन तक, लाइक ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए। जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे सारा पेपर्स को, आपको रिवीजन करने के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, चलो दोस्तों, थैंक यू, सभी को धन्यवाद है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।